शरद पवार अब सामने आ रहे हैं। शरद पवार जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, मीडिया के सामने आए हैं। एक मीटिंग हुई है, उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई थी जिसको कि अमान्य बता रहे हैं अजीत पवार कैंप। और ये कार्यकारिणी की बैठक थी उनकी, इसमें महत्वपूर्ण बातों पे फैसला होना है कि पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह, इन तमाम चीजों पर। तो शरद पवार सामने आ गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अपनी बातें रखेंगे, तमाम सवालों के जवाब देंगे शरद पवार। Unity of opposition was the idea first mooted by Sri Sharad Pawar 1 year back in the National Convention of the NCP itself. What is it? Please cooperate. तमाम प्रेस वहाँ पे मौजूद है और सबको इस समय नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है। काफी लोग उत्सुक हैं शरद पवार क्या कहेंगे ये सुनने के लिए। शरद पवार ने अभी अपनी जो कैंप है उनका, उसकी एक बैठक की है। एनसीपी जो एक शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी है, वहां पर एक मीटिंग हुई थी, वहां उसकी और शरद पवार के घर में ये मीटिंग हुई है। ये एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बताई जा रही है। और इस समय एक बड़ी चुनौती है शरद पवार के सामने पार्टी को बचाने की, अपने चुनाव चिन्ह को बचाने की। लेकिन अजीत पवार कैंप जो है वो कहता है कि शरद पवार तो पार्टी के अध्यक्ष हैं नहीं, और 30 तारीख को ही उनको ये बता दिया गया था, 30 जून को, और अजीत पवार जो हैं वो पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये जो मीटिंग हो रही है वो गैर कानूनी मीटिंग है और इसमें अगर कोई भी फैसला लिया जाता है तो वो अमान्य होगा। तो अब देखना है कि शरद पवार इसका क्या जवाब देते हैं। एनसीपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है शरद पवार गुट की। Any of the national committee, namely Central Disciplinary, Sri Praful Patel and Sri Sunil Tatkare were removed, and Sri S.R. Kohli, 3 people are prohibited by the working committee by a resolution for indulging in any of the state's national committee matters, namely Central Disciplinary Committee and other committees. Any of the committees constituted under the constitution of the party earlier. These people, 2-3 people who are suspended, they are members of subcommittees also. So any of the committees constituted under the constitution of the party, these people are prohibited because they are suspended. Any of the trusts constituted under the constitution of the party. NCP has constituted different trusts in the national level and in some state level also. All these trusts, these people who are suspended cannot be in touch with any of these activities. They are barred from involving any of the activities of the trust formed by the party. Any of the responsibilities with powers and functions given by the party or the president. Casually, government president authorizes these people to do some work as an assignment from the president's side. All such assignments given to these 3 people are hereby cancelled by our resolution in the party. We are quite happy and satisfied that the party, in spite of the fact that we had a very short notice, because we have served the notice only yesterday, and today the attendance was much better than the previous meetings, and resolution की कॉपी आप लोगों को दी जाएगी, हाँ, सबको. I will give you attendance. Yeah. Working committee. Out of the 12 members who are elected members, 7 members were present today. Rest of the members, barring the suspended members, gave their letters because they could not reach here. The letter was sent yesterday. Out of the permanent invitees, there are 15 members. Out of that, 10 people attended today's meeting, and barring the suspended people, rest of them gave us letter. So there is absolutely no problem as far as NCP is concerned as an organization. Whatever publicity somebody is trying to give, that is not affecting the NCP in any way. That is reiterated very firmly by the working committee today, along with the national problems, passing resolutions. We have decided to continue our fight against the communal politics headed by BJP. Now,
These are the decisions taken. Sir, any action on Ajit Pawar? 1 minute. 1 minute. Yes. Now, There are 2 MPs and 9 MLAs. I said that. 9 MLAs include the name which you have said. 9 MLAs who became ministers in Maharashtra and 2 MPs, Sunil Tadkare and Prabal Patel, are the 11 people by name we have suspended. And Mr. Sarkozy. Yeah. आपको 9 members have been expelled. 1 minute. Point to point will come. चाको साहब ने आपको इंग्लिश में पूरी सारी चीजें बता दी हैं। पूरे देश में देश के 27 राज्यों ने माननीय पवार साहब के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है। 100% जो हमारी कमेटी है, नेशनल कमेटी है, उसने विश्वास व्यक्त किया है। 15 में कुछ लोग जो मंत्री बने हैं उनको सस्पेंड किया गया है, इसलिए वो संख्या आपको 15 के बजाय 10 दिखती है। बट दे आर सस्पेंडेड, दे हैव ज्वाइन, उन्होंने बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिलाया हुआ है। पवार साहब को पूरी कमेटी ने ऑथराइज किया है कि देश में या राज्य में कहीं पर भी अगर कोई पार्टी के खिलाफ जाता है, पार्टी की पॉलिसी आइडियोलॉजी के खिलाफ जाता है, साहब को उसे सस्पेंड करने का, एक्शन लेने का पूरा अधिकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रदान करती है। जैसा आप जानते हैं, महाराष्ट्र के सारे लोग कहते थे कि पवार साहब हमारे दैवत हैं, दैवत मीन्स हमारे भगवान हैं, और जो लोग कल तक पवार साहब को अपना भगवान कहते थे, आज उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी भी चेंज कर दी और अपना भगवान भी बदलने का काम किया है। इसलिए हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में आइडियोलॉजी और अपना पिता, जो लोग पवार साहब को दैवत कहते थे, अपना पिता कहते थे, आज उन्होंने पिता बदलने का प्रयास किया है, आइडियोलॉजी को छोड़ा है। इसकी हम सब लोग निंदा करते हैं। हमारे और पवार साहब के नेतृत्व में पूरा देश, पार्टी में कोई स्प्लिट नहीं हुआ है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, विधानमंडल में कुछ एमएलए हमको छोड़ के गए हैं, वो वहाँ जो रिवल हुआ है डिप्टी सीएम जो अभी है अजित पवार जी के नेतृत्व में, लेकिन हमें विश्वास है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में पवार साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हम फिर से एक बार अपनी सरकार, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सरकार बनाने में सक्षम होगी। और एक बात स्पष्ट है कि पवार साहब के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी कभी भी कम्युनिज्म के साथ, वो जो है धर्मनिरपेक्षता के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। हम विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे, देश के जो अनेकता में एकता है उसको बनाए रखेंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं खत्म करता हूँ और साथ को लेता हूँ। माइक किसके Don't touch the mic. So please keep the silence. Okay. अभी हाँ, it's working now. The hand mic is not working, please. Please be silent. One question. आप लोगों ने ठाकुर साहब ने डिटेल बताया होगा कि आज की मीटिंग में क्या हो गया। मुझे खुशी है कि वानराज जिन लोगों को एक्सप्लेन किया वो छोड़कर बाकी सब लोग इसमें शॉर्ट नोटिस में मीटिंग के लिए आए थे। उनका हौसला अच्छा है। Mic not running. हो गया
ये बोलता हुआ तो उनका हौसला अच्छा था और पार्टी को खेत हटाने का काम कुछ साथियों ने किया। इससे फिर मजबूती से पार्टी को खड़ा करना, आगे ले जाना और अच्छी स्थिति पर लाना, ये मानसिकता हमारे सभी साथियों की थी। और इसलिए मुझे खुशी है कि एक आज की मीटिंग हमें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत मददगार हो गई। इससे मैं कोई ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। जो कोई डिसीजन हम लोगों ने लिए ये आप लोगों को शायद बताए होंगे। आपको कुछ सवाल पूछना हो तो यू कैन आस्क मी इफ यू वांट एनी क्वेश्चन। एक मिनट किया गया है ऐसा दावा है। प्रशांत अजीत पवार को नेशनल प्रेसिडेंट नियुक्त किया है 30 तारीख को। किसी ने कुछ कहा मुझे मालूम नहीं। आपको मुझे एक बात पता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। दूसरा किसी ने अपने नाम पर स्टेटमेंट दे दिया, कुछ बात कही तो बात कह सकते हैं, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई सच्चाई नहीं। सर ये स्टेटमेंट जारी किया गया है, कहा गया है कि आज आपने जो मीटिंग बुलाई वर्किंग कमेटी की, इसके पास कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है क्योंकि अजीत पवार नए प्रेसिडेंट है और इसके अलावा जो भी मीटिंग होगी सब डिस्प्यूट में है, आधिकारिक नहीं है। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग है अथॉरिटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हुई है। किसी ने कुछ कहा होगा, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं। Sir, my question to you is about about opposition unity, sir, and the fact that you are going to meet or in Bangalore on the 17th, 18th. The fact that the MBA now is under threat. Uddhav Thackeray as well as you have been diminished by the BJP in terms of things. Congress. Diminished means they have broken your party. Suppose some people left your party, goes to some other side. It's not happen in political party, but doesn't say limits of this or that. As I said, we will that party. Let her please. Yeah. अजीत पवार ने आप पर पर्सनल अटैक करके आपकी उम्र पर सवाल उठाया है। चाहे आप इस्तीफा देते हैं फिर इस्तीफा वापस में लेते हैं। शरद पवार को इस तरह के पर्सनल अटैक पर आप क्या कहेंगे? आप 82 साल के हो गए। Question doesn't arise to stopping. Now I work more effectively. We were 82 or 92. पवार सर हिंदी में सर आपने एक्सपेल करके उनको डिस्क्वालिफिकेशन के से बचाया, ऐसे नहीं आपको लगता है? नहीं, पवार सर सवाल यह है कि One question from the last. पवार सर आप लोगों ने कैविएट दाखिल किया चुनाव आयोग में, अब किस आधार पर लड़ाई लड़ेंगे चुनाव आयोग में? दूसरा सवाल है कि जब शिंदे ग्रुप अपनी लड़ाई शिवसेना की तरफ से लड़ रहे थे तो उनका आधार माना गया था विधायकों की संख्या को। क्या आपने जो भी घोषणाएं संगठन को लेकर की है उसकी जानकारी पहले से चुनाव आयोग को बताई थी? क्या क्या आधार? बात यह है, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस चंद्रचूड़ इनका जो जजमेंट है, इस जजमेंट में उन्होंने कहा है कि एमएलए इनकी स्ट्रेंथ, इनका नंबर, ये फिगर करेगा, ये मेजर इशू नहीं है। उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिकल पार्टी गॉट मोर पावर एंड दे गॉट एवरी राइट to take appropriate steps. In fact, political party not every. Come on. मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। कोई भी कुछ चाहते तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं। किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना हो, किसी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना हो, किसी को चीफ मिनिस्टर बनना हो, किसी को आर्मी चीफ बनना हो, वो चाहते हैं
चलिए मेरी शुभकामनाएं। चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आप लोग को चढ़ाएंगे। चुनाव आयोग पे तो मामला पहुंच गया है, क्या अगला कदम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा? ये बात ऐसी है कि हमारा विश्वास चुनाव आयोग पर है। हम जो हमें कुछ कहना है तो चुनाव आयोग के सामने जाएंगे, मगर जो लीगल पोजीशन है ये नज़रअंदाज करने के बाद कहीं भी डिसीजन होगा तो हम अफसरों से दूसरी कौन सी अथॉरिटी है वहाँ जाने के बारे में सोचेंगे, मगर ये नौबत आएगी ऐसे मुझे लगता नहीं। वो 30 तारीख का साइन किया हुआ है, वो 5 तारीख को चुनाव आयोग पहुंचता है। आपकी चिट्ठी 30 तारीख को ईमेल से भेजी गई है, 30 तारीख को पहुंचती है। इससे क्या कहेंगे? क्या ये चिट्ठी के बारे में चुनाव आयोग तय करेगा? मुझे मालूम नहीं, इस देश में इंफॉर्मेशन पेपर यहाँ से वहाँ जाने के लिए 5 दिन लगते हैं, कि मुझे मालूम नहीं। ठीक है, जो क्रिया होगा वो चुनाव आयोग इस बारे में तय करेगा। अजीत पवार कह रहे थे, उन्होंने आज भी कहा कि 2/3 मेजोरिटी हमारे पास है, शरद साहब के पास दिखाने के लिए कोई मेजोरिटी नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन का भी तक कोई दरवाजा खटखटाया है। कैरियर के तो देखेंगे ना, अभी कल टाइम आएगा, इसमें सच्चाई क्या है ये देखने के लिए, चाहे 2/3 हो या चाहे कुछ हो। एक बात है, हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन वहाँ ठीक तरह से निर्णय लेगा। और दूसरी बात यह है, जहाँ तक लोगों का समर्थन है वहाँ क्या स्थिति है उस राज्य में मैं जानता हूँ। मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट में एक विजिट दे दिया। जिस तरह से खास तौर पर नौजवान एक तरह का समर्थन आज हम लोगों को मिल रहा है, इससे मुझे पूरा विश्वास और खुशी है। कराड डिस्ट्रिक्ट आफ्टर डिफेक्शन पवार साहब बोल ज्या पद्धतीने ईडी आणि सीबीआयचे आरोप अजीत पवार के साथ है, ऐसे में क्या आपके साथ और विधायक आएंगे जो बाद में विधायक है, क्या उनका समर्थन आपके साथ है? आपको पता लगेगा कुछ दिनों में इससे क्या बदलाव हो रहा है। इस तरह से ईडी और सीबीआई के आरोप होते हैं और बाद में लोग जो अपना नेतृत्व है उसको छोड़ के अदर पार्टी में चले जाते, नई पार्टी बनाते, इस तरह से कितनी पार्टियां देश में छूटेगी ये मुझे मालूम नहीं, मगर ये बात सच है कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाला अपोजिशन को दबाव डालने के लिए, वीक करने के लिए ईडी, सीबीआई और सेंट्रल एजेंसी इसका इस्तेमाल जगह जगह पर कर रहे हैं। ठीक है, आज 10 महीने 11 महीने बाकी है, इसके बाद चुनाव होगा और स्थिति देश की बदलेगी, तब इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, इस पर हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। आपको एक बार मौका आप लीजिए। एकनाथ शिंदे की कैंप में बेचैनी है, कुछ ऐसा लग रहा है कि उनको हटा दिया जाएगा मुख्यमंत्री पद से, ऐसी खबरें आ रही हैं। आपको लगता है आपने कहा 3 महीने में पिक्चर बदल जाएगी? ये ऐसा कुछ वहाँ हो रहा है स्टेज पर, मेरे पास नहीं, आपके पास हो तो मुझे प्राइवेट कीजिए। राजकक्षाने उद्धव ठाकरे एकत्र येतील अशी चर्चा आणि होल्डिंग लागतायत महाराष्ट्रामध्ये। सही गोष्ट कुछ जगहों पर ये चीज नोटिस में आई थी कि 18 अप्रैल को एक पत्र साइन किया गया था जिसमें 40 विधायकों का समर्थन अजीत पवार साहब को था। क्या ऐसा कोई पत्र अस्तित्व में था? और 2019 में भी ऐसे एक पत्र सामने आया था। उसमें एक बात सच है, 2019 यानी 2 साल में 3-4 साल पहले तब कुछ लोगों ने कहा था साइन करके कि हमारे आगे की नीति कैसे होनी चाहिए,
किसके साथ हमें जाना चाहिए, इस पर बात करने की आवश्यकता है। तो हमने कहा था कि मीटिंग हो रहा है, अगर बाद में आगे का इलेक्शन आ गया तो वो कुछ हुआ नहीं। पवार साहब, मेरा सवाल है कि शिवसेना में भी टूट हुई, उद्धव ठाकरे लोगों के बीच जा रहे हैं, आपकी पार्टी में भी टूट हुई, आप भी लोगों के बीच जा रहे हैं, इसका 2024 में कैसा असर देखते हैं महाराष्ट्र की जनता के बीच में? मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में महाराष्ट्र में हुकूमत बदलेगी। आज जिनके हाथ में हुकूमत है उनको लोग दूर करेंगे, और जो कुछ अपोजिशन में काम कर रहे हैं हमारे जैसे लोग हैं, इनके खिलाफ जिस तरह के कदम उठाए गए इसकी कीमत उनको देनी पड़ेगी। Pawar sir, what is the message that you want to give Ajit Pawar? He was so close to you. Today he is against you after so many years. Is there something, a very direct message? Because it has been an emotional moment and other level of movement also for you. Nothing found. Ultimately, party decision, party thinking, party ideology is supreme found. पिछले महीने आपने सबकी घोषणा की थी, कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को बनाया, छगन भुजबल को जिम्मेदारी दी गई थी यहीं एनसीपी मुख्यालय में, तो आपको तब अंदाजा नहीं था कि इस तरह की गतिविधियां पार्टी के अंदर चल रही हैं, क्योंकि आप ही की पार्टी के तरफ से कुछ गद्दार के पोस्टर भी लगे, कटप्पा बताया गया। एक बात मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, यहाँ की एजेंसी कितनी इफेक्टिव है ये मुझे मालूम नहीं था। पवार साहब, इससे पहले महाराष्ट्र का पॉलिटिकल क्राइसिस कैसे देखते हैं? जो 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, उससे पहले महाराष्ट्र के बीच में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है और जनता के बीच में भरोसा टूट रहा है, उसे कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, जो कुछ हो रहा है इससे मुझे खुशी है कि इसकी जबरदस्त कीमत जिन्होंने लोगों को कमिटमेंट करके इनके वोट हासिल करने के बाद गलत रास्ते पर गए, उनको कीमत देनी पड़ेगी। राज की स्थिति बदलेगी, वहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस हो और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला सेना का संगठन हो, इनके हाथ में महाराष्ट्र के लोग पूरी हुकूमत देंगे। प्रफुल्ल पटेल को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अजीत पवार साहब को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। क्या आपको लगता है कि आपसे कोई चूक हुई ऐसी जिससे अजीत पवार टूटे? लीडर और अपोजिशन ये जिम्मेदारी पहले उनको दी गई थी। उसकी सजा भुगतनी होगी। शरद पवार ने ये भी साफ किया कि जो उनकी लड़ाई है वो जारी रहेगी, कोई कुछ भी कहे इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ये एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे को निकाला गया है।